book, but the practical knowledge is totally different. The how we pardon? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am, you are audible. Please continue. Okay, okay. Uh, you know, the little children, the way Geeta ma'am said, ki let them color the, if they wanted to, put green color, so they can have. You know what happened when the teacher asked to draw a flower? Okay, draw a sun, then put a yellow color. So child is only learning that, sun is having yellow color, but it has the, at the time of sunset or, sunrise, so they, it shows us different colors. Red Let also. them do. Red also, orange also, Yeah. Uh, so there are the number of colors, number of, colors of flowers. So don't force them to put such kind of color. Let them do whatever they wanted to do. While teaching them, each and every child is different. And when we say that every child counts, for a parents, for me, only I am concerned about the studies of my child. Other child is, maybe a topper, but what teacher is giving to my child? Maybe my child is not that much of intelligent the way other, students are grasping the thing. Teacher has to go on the depth of the mental level of the child. Only then she can be a good teacher. Each and every child is a different, and you have to deal in a different manner. Some are very notorious, so don't shout on them. You just sit with them, have some fun with them. What is your favorite cartoon? Hey, come on, let's do it. Let's finish the food. Because the child is, in the habit to talk to like this. So if the teacher is dealing in the same manner, the way the child is coming from the, the upbringing of the child, then that child teacher will be the God for that child. So for me, that understanding the psychology of the child, maybe child is having some problem at home and is not able to write. So don't shout at them, don't scold them. Yeah, let it be. Today is not, he's not going to get a degree. Let it be. Let them do. If they don't want to sit, don't force them. कल काम हो जाएगा. What is the, problem in that? एक ही दिन में हमने सब थोड़ा पढ़ा देना है. So be friendly, be a mother teacher, be a motherly treatment, and try to understand what is the problem of a child. Rajul sir, can And I then, add one? I want Yes, to add something. let Reena ma'am finish, then I'll come back to you. Yeah. Yes, Reena Yeah. ma'am, please. Please, Rina, ma'am. Sorry. so thank you. So ki that teacher, if the teacher is having that much of intellectually, dealing with a child, emotionally dealing with the child, then teachers and students can make the wonders even for the child. You can see the so many, Absolutely. shows are going on. So many shows are going on, reality shows. You can see the 3, 4 years children are doing fantastic. So that is not only the role of the parent. Teachers are playing the same role because they started learning the things at school, not at, no, not all the activities at home. बट वहां पे तो मैथ्यू सर ने बताया ना कि Actually, अगर they, 40 बच्चे एक सेक्शन में हैं, learn somewhere. all are coming from different Yes, background. sir. जो मैथ्यू सर ने कहा अपनी टॉक में that teacher, the biggest challenge for teacher is that we have 30-40 students in a section. Yes. और Sometimes teacher more than 40. has to take 4 or 5 class at least a day. तो करीब 100-125 बच्चा अलग अलग सेक्शन में, जिनमें से करीब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे Very हैं. true. कोई न्यूक्लियर फैमिली से, कोई जॉइंट फैमिली से, कोई हिंदी बेल्ट से, कोई किसी और स्टेट बेल्ट से. आप किसी के घर पे कोई और प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के घर पे there are different challenges. So it's become very difficult. So we need more solutions. In fact, कुछ practical चीजें हम लोग, we visit lot of schools. I have personally visited more than 1700 schools in my life. So I believe there are so many practical solutions available. जैसे गीता मैम ने भी कई सारी बातें बताई. At this platform we have learned about so many things which are there and which are free of cost available. For example, there are many schools which prepare a file for every student. Every year, in every they update that file. They talk to their parents in the month of like in different schools that timeline is different, but they try to create a I would say a map Portfolio. Those year. Portfolio. for that student. Portfolio. So if any new teacher comes and it just go through that file, of that particular kid, he or she can imagine and visualize
the background of that kid, academic performance, the performance in different sports. You know, when you have that kind of idea about that kid, it is more, you know, convenient for a teacher. So few schools are doing that, but many schools are not doing it. Many schools are not keeping a data of their parents, of their professional background. You know, you may have a lot of parents who are the teachers or the principal or vice principal in some other school, or the engineers, or, you know, doctors, or, you know, some other professional in some other background. We can utilize those resources. You know, we can invite them to our school to have a talk. So, but many schools are not doing it. You know, so there are many sources available, but I'm sure this is called the collaboration, and when we sit together, we learn from each other. So yes, Anita ma'am, you wanted to say something, and Bhuvana ma'am, you raise your hand. I'll come back to you after Anita ma'am. Anita ma'am, yes, please. Actually, the question was regarding the methodology. Actually, I would request that particular person who has raised this question. Actually, other than lecture method, you use whatever you want to use. Other than that teacher-centric method, you just make the child-centric teaching. Actually, you use the group teaching. You teach the children in groups only. You teach them in project basis. But whatever you do, don't do lecture methods only. And textbook and lecture. This method is going on in most of the schools. Other than this, any methodology, whatever suits you, you create your own methodology and teach them children. This much actually I just want to add. Thank you. Absolutely. Thank you, Anita ma'am. And I just would like to check, Bhuvana ma'am, you raise your hand if you have something. Okay. So right. So big thanks, Geeta ma'am. I have you know, one question for you. You know, this was asked in the last session, 130th session in the morning. You know, one senior educator from Ahmedabad participated, and she asked, the speaker asked two questions. One, are we going to have a separate certification organization for pre-primary schools? Number one. And number two, are these pre-primary schools going to teach up to second class now, this post NEP? See, yes, of course, teacher trainings are mandatory. They will be happening, specified teacher trainings for the group which they are dealing with. So, for example, pre-primary, there will be specialized Montessori or nursery teacher trainings, and which will be included. Earlier also, there are some certificate course being done by, I think, IGNOU and some universities. And in B.Ed also, one paper on early childhood care and development was given to the teachers so that they can do that. They can learn more of these things. So that is going to happen. Now, the second part is that will the teacher will be teaching up to grade 2 only? No, that will be depending on the school to school. So, for example, one school is from grade 1 to grade 12. Now, they also have an option to start their PG nursery K. उनका तो क्लियर है, पर जो अभी नर्सरी स्कूल चल रहे हैं, अर्बन एरियाज में अलग अलग चल रहे हैं, तो वो अभी तक तो केजी तक ही पढ़ाते हैं, नर्सरी तक ही पढ़ाते हैं. क्या वो अब सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ा पाएंगे? नंबर वन. दूसरा कि अब उनको परमिशन अब कहाँ से लेनी पड़ेगी पोस्ट एनईपी इम्प्लीमेंटेशन? See, for NEP implementation, they will again the permission for the schools are the state issue. So state government gets the recognition for all those up to grade. They will be also coordinating with the state governments, and the DM of the city will be involved. The Basic Shiksha Adhikari BSA will also be involved in the process. Okay. Now, it is not necessary that the school, if is running only playgroup, nursery and KG, not teaching 1 and 2, they will not be forced to teach 1, 2. But if they want to teach 1, 2, they can do it, but they will have to improvise themselves and their teaching pedagogies according to NEP suggested methods. So like they will also be guided to follow the curriculum which will be developed by NCERT for this early child care.
till now there is nothing structured for them. So what is happening that many of the schools, they start giving the pen pencil to the students of nursery and KG also. So what is happening? Grade 2, 1 shifted to up to nursery level. And that is very disturbing also, because children are not learning anything. They are just being again pressurized by the teachers as well as parents. Why my child is not able to write? Instead of focusing on the development, instead of giving the more skill of speaking and listening, children are being forced to start writing, right? So all the schools will have to follow that system which will be developed by NCERT. And if it is not, till it is not developed, I think the schools and school leaders need to take care of it, go through this NEP very carefully, and see whether you are following the early childhood care. You know the scientific reasons behind the things which are told for children to do. If Right. you are aware of those reasons, then you will automatically try to implement those things in your Right. schools. Right. Thank you. Thank you, Verification. Geeta ma'am, for sharing these important thoughts. Yes, so with this, we come to the end of this very, very special session. But before we end the session, I would request all our key speakers if we can have your concluding remarks. You know, we have also established one very interesting practice, that while sharing your concluding remarks, if you can also share one idea or one your priority that you would like to implement if you get a chance to become Minister of Education of a country. So what would be your priority? Let's say you become the Minister of Education for one day. So what would be your priority? So you know, I'll begin with Reena ma'am, with you. Reena ma'am, if I may request you for your concluding remarks. Okay. And what would be your priority? आप पूरे एक दिन में क्या करना चाहेंगे? सर मैं दिल से ये चाहती हूँ मिनिस्टर बनूं या ना बनूं, पर मैं दिल से गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि उन बच्चों में कैलिबर बहुत है सर, पर एक तो पेरेंट्स के पास मीन्स नहीं है, या मीन्स नहीं है उन पे इतनी, दे आर नॉट एजुकेटेड कि गवर्नमेंट्स की बहुत सारी पॉलिसीज हैं कि वो बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, उनमें दे आर नॉट विजिलेंट। सर्व शिक्षा अभियान में तो फ्री एजुकेशन है ही सबको, बट सर हाउ मेनी आर गेटिंग? That is the problem ना, कि bringing them to the school. मैम अब तो आप मिनिस्टर बन गए, तो आप बताइए ना आप क्या करेंगे? ओके, हाँ सर, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है प्राइमरी स्कूल्स में, क्योंकि कई टीचर्स जो आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, देयर इज ओनली वन टीचर इन अ स्कूल। बहुत ही कम जगह प्रिंसिपल हैं, सब आते नहीं हैं, और वो राशन की दुकान पर जाकर सर मिड डे मील के लिए चावल भी खुद लेकर आते हैं और खुद ही खड़े होकर बनवाते हैं। तो वो टीचर जो है वो तो मिड डे मील बनवाने और खिलाने में बिजी है, पढ़ाएगा कब? 5 साल का बच्चा भी फर्स्ट में, 10 साल बच्चा का भी फर्स्ट में। आप बताएं कि एक टीचर या 2 टीचर 100 बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाएंगे? जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि टीचर शुड बी बीएड, इतना वो एजुकेटेड हो कि वो एबीसीडी पढ़ाने वाला एनटीटी हो, फर्स्ट सेकंड पढ़ाने वाला है बीए बीएड हो। सर एबीसीडी पढ़ाने के लिए तो एक 5th क्लास वाला भी पढ़ा सकता है, ठीक है। मैं आपसे ये कहती हूँ टीचर वो होना चाहिए जो बच्चे को प्यार से पढ़ाए, उसको समझे। पर सर 1 या 2 टीचर से कोई स्कूल नहीं चलता। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हर क्लास के लिए अलग टीचर, हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर अपॉइंट करता है, तभी तो एक प्रोटेक्टिव आती है। तो गवर्नमेंट को मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए, और अगर हम एक फ्री एजुकेशन दे रहे हैं सर, तो वो वाकई में ईमानदारी के साथ देनी चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए कि ठीक है स्कूल खोल दिया, काम खत्म, मिड डे खिलाओ, आज खीर खा लो, आज खिचड़ी खा लो। बच्चा खिचड़ी खीर खाने नहीं आता सर, और टीचर खिचड़ी खीर खिलवाने नहीं जाते। दिया कि दैट कैश ट्रांसफर, स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज कैश ट्रांसफर प्रोग्राम कैन हेल्प, जहां बच्चों को कैश देने, बच्चा अपनी मर्जी से अपने आसपास के किसी भी स्कूल में जाके पढ़ाई करे। सो दैट कैन बी सर, लेकिन वो ये कैश ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली स्कूल में पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे इतने बैकवर्ड हैं, इतने पुअर हैं कि वो उससे राशन खरीद के खा जाएंगे, स्कूल की फीस देने नहीं जाएंगे सर। ये आपको हकीकत बता रहे हैं सर कि बहुत ही मतलब इंडिया इज अ वेरी पुअर कंट्री। किस तरह से बच्चा सरवाइव नहीं कर पा रहा है सर इस समय। तो पैसा देना मुझे कोई सोल्यूशन नहीं लगता। बच्चे को फैसिलिटेशन देना, फैसिलिटेट करना, एक मोबाइल स्कूल ही बना दिया जाए कि ठीक है चलो
हम पूरे हफ्ते नहीं आपको 10 टीचर दे सकते हैं पढ़ाने, पर हम एक गांव में एक दिन तो 10 टीचर दे सकते हैं जो अपने अपने विषय में जाकर पढ़ाए। सर मुझे लगता है अगर ऑनेस्टली इन चीजों पे काम किया जाए तो कोई इंडिया को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, साक्षर करने से रोक नहीं सकता सर। सिर्फ पोस्टर पे नहीं, साक्षरता अभियान सिर्फ पोस्टरों में ही चलता है सर, हकीकत धरातल पे चलता ही नहीं। थैंक यू अरीना मैम। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपने बात करी, और बिल्कुल इन सब के सॉल्यूशन समाधान निकलने ही चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एनईपी उस दिशा में कई सारे कदम उठाने की बात कर रही है और वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पाए। सो थैंक यू अरीना मैम, एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट अनीता मैम, if I may request you for your concluding remark, and what would be your priority if you get a chance to become a Minister of Education? जी एक्चुअली अभी रीना माथुर मैम, वर्मा मैम ने बहुत सही बातें कही। तो सबसे पहला काम होगा, अगर मिनिस्टर बनती हूँ ना सर, मैं अपॉर्चुनिटी मिलती है, सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करूंगी। सरकारी स्कूलों को सच में ठीक करने की जरूरत है। लिटरली वहां पर कितना पूछ रहे हैं कि कैसे करें, पर कोई उनको बता ही नहीं पा रहा कैसे करें। नहीं सर, नहीं पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, पूछे तो सही सर, कैसे नहीं कर, सर क्या आप नहीं बना हो दीजिए, सर आप बना सर, दीजिए बना हमें दीजिए आप। मिनिस्टर। सच में एक्चुअली क्या नहीं हो सकता, आप बताइए। जो टीचर्स अपने स्कूलों में मुश्किल से 30 दिन में से 10 दिन जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कौन चेक कर रहा है सर? ये देखिए वेरी आप। जाकर एग्री। जाकर वो धूप में बैठकर धूप सेक रहे हैं सर्दियों में, और बच्चे जो है उनके लिए पानी की व्यवस्था। कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो सर बहुत कम। सर मुझसे पूछिए ना, मैं गढ़वाल रीजन में रहती हूँ, मेरे ऋषिकेश के बाद सारा पहाड़ शुरू हो जाता है सर। आप आके देखिए, यहाँ पर स्थिति बहुत दयनीय है सर, बहुत दयनीय है। नहीं, टीचर्स मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ बिकॉज कई सारी जगहों पे, चाहे वो हरियाणा है, अब यूपी में भी कई सारी जगहों पे, नॉट 100% प्लेसेस पे, पर कई सारी जगहों पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस पूरी हो गई है। 20 to 30%। नहीं रजूल सर, एक्चुअली केवल 20 to 30% बायोमेट्रिक हो गया है, अदरवाइज सारा वैसे ही चल रहा है। 30% में अटेंडेंस से सुधार आ पाया क्या? वो सर आया है, बिल्कुल आया है, और बहुत बेहतरीन काम भी हो रहा है उन स्कूलों में जहां वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट, वहां हो रहा है। लेकिन आप देखिए ना, जहां सचमुच जरूरत है, रिमोटेस्ट एरिया में जहां जरूरत है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक स्कूल है बहुत डिस्टेंट एरिया में, मैं गई थी ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पे बोर्ड एग्जामिनेशंस में वो लोग फर्नीचर भी अपना लेकर आते हैं दूसरे स्कूल में जब वो बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। ये स्थिति है सर। तो क्या गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है? जितना उनको सैलरीज मिल रहा है टीचर्स को, जो फंडिंग जो गवर्नमेंट कर रही है प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, उस फंड उतना उसका ना 50% प्राइवेट स्कूलों को दे दो और कहो कि आप चलाओ स्कूल। मेरे ख्याल से जितने यहाँ बैठे हैं प्रिंसिपल सारे एग्री करेंगे मुझसे, हम आराम से चला लेंगे। सर मैं आपको एक चीज और कहूंगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सैलरीज इतनी नहीं है टीचर्स की जो गवर्नमेंट टीचर्स को मिल रहे हैं। इतने कम सैलरी में टीचर पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है बिकॉज ऑफ द जॉब सिक्योरिटी। दे नो कि अगर हमने नहीं पढ़ाया तो हमारे को वी विल बी टर्न आउट। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, प्राइमरी के स्पेलिंग भी तो प्राइमरी आप देखिए, सो मेनी वीडियोस आर कमिंग, दे डोंट नो हाउ टू राइट डाउन प्राइमरी एंड दैट बिकम द प्राइमरी टीचर्स। ऐसे लोगों को नौकरियां मिली हुई है और जो डिजर्विंग है उन्हें मिलती नहीं है सर। एक तो इन चीजों को भी देखना चाहिए कि जो टीचर को हम वहां पे लगा रहे हैं, जो इतनी 50-60 हजार की तनख्वाह ले रहे हैं, आर दे केपेबल टू टीच? और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सर क्यों पेरेंट्स भेजता है? बिकॉज दे नो यार मेरे बच्चे को पढ़ाई मिलेगी, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। ये बातें सब कहने वाली बात है, सारे मिनिस्टर के बच्चे तो कितने बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, कौन भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल अपने बच्चे? उत्तराखंड में मुझे किसी ने बताया, किसी एजुकेशन लीडर ने, कि गवर्नमेंट ने 1000 रुपए कर दिया है, जो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ना चाहे तो मिनिमम 1000 रुपए उनके पे करेंगे, ऐसा है? नहीं बिल्कुल नहीं सर एक्चुअली लिसन सर, आरटीई में जो है जो प्रोविजन है बस आरटीई के थ्रू है, बाकी कुछ नहीं है। आरटीई में भी बल्कि सर जो राइट पर्सन है वो आ कहाँ पाता है, जो डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, जिसकी अप्रोच डॉक्यूमेंट बनाने में होती है वही पहुंच पाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट देखते हैं। बाद ना वो लॉटरी सिस्टम निकलता है। एक बार मेरे स्कूल में एक लेडी है, वो कहीं झाड़ू पोछा किसी के घर में करती थी, किसी लॉयर के घर पे, एंड शी विजिटेड मी 4 टाइम्स कि मैडम मेरे बच्चों को ले लो, पर हम आरटीई में हम ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, हमें तो जो ऑफिस से आएगी वो हमें लेना पड़ेगा। तो मैंने उसको बैठकर अपने स्कूल में अपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर था ऐसे कि इसका तुम ऑनलाइन फाइल कर दो। सर एक अनएजुकेटेड आप बताइए कैसे ऑनलाइन फाइल करेंगी, कैसे वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? हमारे जो जो सिस्टम सब है, और जो सिस्टम हम दे रहे हैं क्या वो हो पा रहा है? वो चीज हो ही नहीं पाती। सिर्फ एक अनएजुकेटेड जो अंगूठा छापे वो क्या कंप्यूटर में बैठ के बच्चे का नाम फीड करेगी? तो मैंने आई हेल्प हर आउट, क्योंकि मैं
दिल से चाहती थी उस लेडी को, वो उसके पढ़ाने की जो इच्छा थी अपने बच्चे को, बहुत बड़ी थी। तो मैं आई हेल्प हर आउट। हालांकि उसको हमारा स्कूल नहीं मिला, लेकिन हाँ उसको उन 3 में से कोई एक स्कूल जरूर मिला होगा कि जहाँ उसके बच्चे पढ़ पाएंगे। Absolutely. Right. Thank you, Reena ma'am, Anita ma'am. And before I go to Geeta ma'am, I would request Rajneesh sir, sir, if we can have your concluding remark. And what would be your priority if you get a chance to become Minister of Education? आप उन बच्चों को देख रहे हैं सर जो स्कूलों से आ रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, और उसके बाद फिर उनको देख रहे हैं कि उनको कितनी को नौकरी मिल पा रही है, कितने को नहीं मिल पा रही है, यू नो। सो कई बार हायर एजुकेशन में आपकी तरह लीडर्स जब बात होती है हमारी, तो वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे पास जब बच्चा आता है तो वो ऑलरेडी अपना एटीट्यूड बना के आता है। तो आप कैसे देखते हैं? योर कंक्लूडिंग रिमार्क फर्स्ट एंड योर प्रायोरिटी एज ए मिनिस्टर। सर, वैसे मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे हूँ, तो मुझको इंजीनियरिंग का सारा डिमेरिट पता है कि क्या डिमेरिट चल रही है यहाँ इंजीनियरिंग में। जैसे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ना हॉस्पिटल कंपलसरी है, ताकि जो स्टूडेंट 4 साल 5 साल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है तो वो उस समय अपना प्रैक्टिकल अप्रोच हॉस्पिटल में यूज करता है। इंजीनियरिंग में ये व्यवस्था नहीं। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन खोल लिया, आप 4-5 ब्रांचेस एक साथ ले आए, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और छोटी छोटी लैब्स बना दी। अब जब बच्चा पास आउट होकर इंडस्ट्री में जाता है तो वो उन चीजों को देखता है जिन्हें कभी किताबों में उसने देखा ही नहीं। तो होना ये चाहिए कि अगर जैसे गवर्नमेंट का एक एम है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना है, उसमें पब्लिक फंडिंग को लगाना है, तो उसमें ये कंपलसरी कर दे कि जो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन खुलेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मैं मिनिस्टर होता तो मैं ये कहता कि अगर मेरी मैकेनिकल की इंडस्ट्री है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही कोर्स को चलाऊंगा। तो क्या होता है कि 4 साल की इंजीनियरिंग में बच्चों को मैं प्रैक्टिकली, अगर मेरी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल के बारे में बच्चा एक्सपर्ट हो जाता, अगर मेरी रेफ्रिजरेशन की है तो उस पर एक्सपर्ट हो जाता। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन में हमको ये चीज करना चाहिए। तो मैं इंजीनियरिंग में तो ये 100% कहूंगा कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ सोचना पड़ेगा कि एम्प्लॉयबल अगर बनाना है स्टूडेंट को तो उसको प्रैक्टिकल अप्रोच, बेसिकली एजुकेशन का पर्पस क्या है, टू मेक द पर्सन एनालिटिकल। आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे को एनालिटिकल नहीं बनाता। कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस स्कूल्स को छोड़ दें तो वो डिग्री लेने के लिए आते हैं बच्चे। मैंने एनआईटी भोपाल से किया है, मैंने जितना पढ़ाई, जब मैं प्राइवेट कॉलेजेस में देखता हूँ तो स्टूडेंट तो कहता है कि सर आप तो मेरे को पास कर दो, बस हो गया, बाकी तो मैं सब कर लूंगा। अरे पास कर दो तो क्या क्या करेंगे ऐसे एमबीए की डिग्री लेके, बीटेक की डिग्री लेके, जब आपको नौकरी ना मिले, कुछ आता ही ना हो। तो अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं सबसे ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज पे फोर्स करता, कंपलसरी करता है कि स्कूल लेवल से शुरू करें और इंजीनियरिंग तक, हायर एजुकेशन। एक मैं सर आपकी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछो अपनी तरफ से, उसके बाद मैं गीता मैम के कमेंट्स लूंगा। यू हैव अ बर्ड्स आई व्यू, यू नो, ऑन द स्कूल पार्ट। तो आप ऊपर से देख रहे हैं, जब बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपके पास अलग अलग स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं, यू नो, इफ यू आर इन भोपाल तो आपके पास बहुत अच्छे स्कूलों के बच्चे भी आ रहे हैं, आपके पास रूरल बैकग्राउंड से बच्चा भी आ रहा है। तो अगर कोई 2 चेंजेस आप स्कूल, क्योंकि यहाँ पे भी है स्कूल लीडर्स, तो कोई 2 सजेशन आप अगर देना चाहें स्कूल लीडर्स को कि ये 2 चीजें आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते थे, यू नो, उनको बताया गया कि इंजीनियरिंग इज द टॉप मोस्ट ऑप्शन, आप करिए, आपकी लाइफ सेट है। वो आ गए इंजीनियरिंग में, 1-2 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उनको ना इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, ना उनको किसी मशीनरी में इंटरेस्ट है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी में लग गए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गए। तो आपकी कोई 2 सजेशन आपको देना चाहें रजनी सर? सर मैं स्कूल के लिए सबसे पहले कहूंगा, देखा है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बेटा डीपीएस में है, यहाँ कोलार रोड पे। वो बचपन से 4th क्लास तक उसको मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे वो 5th में आया तो मुझे लगा मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत टफ है। मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्या हो गया उसको, एकदम से मैथ्स का टफ। तो पता चला कि जो उसके टीचर है वो चूंकि बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसमें बच्चों में एक मेंटालिटी बन गई कि नहीं ये सब्जेक्ट टफ है, तभी मैडम डांट देती है, ये कर देती है। तो ये बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बच्चों में टीचर्स का होता है, स्कूल एजुकेशन। बच्चे में अगर वो टीचर का बिहेवियर उस स्कूल में बहुत अच्छा है तो वो बच्चा जो है ग्रो करेगा। और नॉर्मली मैंने ये देखा है कि क्लास 6-7 तक का जो है वही फाउंडेशन है। अगर वहां तक बच्चे में बहुत स्ट्रॉन्ग वो एनालिटिकल कैपेबिलिटी आ गई तो आगे बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो मैं स्कूल्स में कहूंगा कि सिर्फ खाना पूर्ति ना करें। जैसा भी एक मैडम ने मुझे बताया कि सरकारी स्कूल की हालत वास्तव में बहुत खराब है। मैं तो यहाँ आसपास में स्कूल्स में जाता रहता हूँ तो देखता हूँ कि वास्तव में पूरा समय तो उनका वो मिड डे मील में चला जाता है, क्या पढ़ाएंगे। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि नहीं, ये फाउंडेशन है,
ये इससे भविष्य उनका वो रहा। अब जब बच्चे ने 10वीं 12वीं तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, उससे हम इंजीनियरिंग में या कोई भी हायर एजुकेशन में क्या करा लेंगे अगर उनका फाउंडेशन कमजोर है। तो स्कूल को सबसे इंपॉर्टेंट उसके बच्चों के फाउंडेशन पे होना चाहिए और इंटरेस्ट डेवलप करने पे होना चाहिए। राइट, थैंक यू, दिस इज वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि एक टीचर जो और शायद हम इस बात को कभी जीवन में ध्यान नहीं रख पाते, बच्चा भी कभी ध्यान नहीं रख पाएगा कि उसका मैथ में इंटरेस्ट क्यों लूज हो गया और उसने मन बना लिया कि मुझे मैथ नहीं पढ़ना आगे। यू नो, सो दिस इज सच अ माइक्रो लेवल रीजन कि एक टीचर जो उतना मोटिवेटेड नहीं था, उतना एनकरेजिंग नहीं था, और या उसका कुछ भी अलग कारणों की वजह से he ruined the interest of that kid in that particular subject. So thank you. This is a very valid point, Rajnish sir. Big thanks for sharing that. And now I would request Geeta Shukla ma'am, ma'am, we would like to end the session with your remarks. And what would be your priority if you get a chance to become Minister of Education? Geeta ma'am. Thank you. And the question is, I was just thinking since then when you asked the question first time, what needs to be changed and what is closer to my heart, which I would like to change. So the first thing, that session is good, a good interaction, and thank you for this platform. And I am able to learn few more things from all the people who were here. Now coming to, if I be the chief minister, education minister, then what will I do? So I'll focus on two things. First, related to teachers, and that will be sensitizing my teachers to the needs of the children, to have a nice behavior, to be understanding to children, not to use the abusive language, derogatory remarks, and hitting, slapping, pinching. Absolutely no, not at all allowed. Now, for the children, if I talk, my focus will be on the safety of the children in schools. And safety, not only the emotional safety, physical safety. So first is physical safety, which all is concerned about. Emotional safety, we don't talk much about. And the safety in terms of preventing our children from sexual abuse is not talked about. So these three areas for children, I would like to focus more so that our children always remain safe and happy in the school environment, because the scars at such tender age never leave child alone when the child becomes adult too. So my focus will be on that. Thank you, Geeta ma'am. These are very valid points. And big thanks to all the key speakers, Matthew sir, Geeta ma'am, Rajnish sir, Anita ma'am, Reena ma'am, and all other key participants for joining us and making this 131st session of Leadership Talk Schoolie special. Big thanks to all of you. We'll end the session here. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, IIC. Thank you, Raju sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. And nice meeting you all. Come in. Yeah. Yes, Very nice. nice meeting. Yeah. Really Let's nice meeting you. remain in touch. Nice meeting you all, actually. Thank you very Yeah. much. Yeah, we can remain in touch. Yeah. Very nice, to talk to each other. Thank you. Thank you very much. Sunita ma'am, We you leave were the also meeting now. fantastic. Rajul sir. Yes, ma'am. Thank you. श्री लीव कहाँ से करना है? लीव मुझे दिखा।
है।